Üşütürsün kuzum, terliklerini giy. Sağ ol. Ata arabaya dikkat et. Değil mi Tosun? Hayırlı işler. Allah bereket versin. Amin. Hadi kalın sağlıcakla. Ne oluyor burada? Ağabeyci dün gece alem yaptırmış. Sözün bu mu Nazif? Döneklik ettin. Kamil! Bir kere soracağım, doğru mu söylüyor? Ben bu herifleri hepiniz için dik duruyorum. Boğazımızdan haram lokma geçmesin. Ekmeğimizi kaybetmeyelim diye. Ama en yakınımdaki sırtımdan vuruyor beni. Eğer bir kere daha olursa... kan kardeşim demem, kapı komşum demem, sürerim seni. Bir kere oldu. Dahası yok. Namussuza kefil olana itimat edilmez. Bir kere olursa hatadır. Affedilir. İkincisi yanlışa girer. Tekrarında affetmem. Kıyacak mısın yani kendi ciğerine? Kangren olan sağ kolumsa sol elimle keserim. Tamam. O zaman racon devam. Mahallen demirden kale. Ne girerim ne de kapına dayanana yol veririm. Kal sağlıcakla. Eyvallah. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı işler. Sağ ayak, tamam mı? Unutma. Bana bak bakayım. 5 dakika önce iyiydin, ne oldu şimdi? Kızdım ben sana. Bak bacaksıza, neymiş o? Üzdün Kamil amcayı. Korktu senden. Bana bak kerata. Kamil amcan kumar oynatıyor, ona bir şey demiyorsun. Dükkanının bize ne? Ama oynayıp kaybeden kim? Komşun. Parasını kaybedince hangi parayla eve ekmek götürecek? Bu öyle bir illet ki elini veren kolunu kaptırır. Kamil amcan da buna çanak tutuyor. Ama o senin arkadaşın. Atacağım dedim mahalleden. İnsanın kuralı, kaidesi arkadaşa göre değişir. He? Yüreğine yazdığın kuralı uygulayacaksın. Ona başka, buna başka olmaz. Koy takkeni önüne de düşün. Ben ilk Nur'a farklı mı davranıyorum? He? Benim kanımdan değilsin diyor muyum ona? Sen neysen benim için o da o. Ben ikinizin de babasıyım. Vicdanındaki kefe kimseye hile yapmayacak. Kimseye iltimas geçmeyeceksin. Adaletin kılıcı herkes için keskin olacak. Ekmek, aş, su gecikebilir. Temel taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Ama mahirim, adalet gecikmez. Tez elden verilmelidir. Bir kahve söyleyeyim mi baba? Yürü kerata. Bu sefer orta olsun. Ağzımızın tadı sabah sabah yerine gelsin.
क्या तुम खाना नहीं खाओगे बेटा? नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैंने रहान को कुछ रकम भेजी है ताकि वो आपको कॉल कर सके। आप तो उसे जानती हैं। और ये मंगनी के लिए रकम, आपने कहा था कुछ चीजें खरीदनी है। बेटा, क्या तुमने इसीलिए अपनी कार बेच दी? थे मेरे पास कुछ पैसे, उसी से काम चल जाता। नहीं अम्मी, कार पुरानी हो चुकी थी। अच्छा हुआ बिक गई। अच्छा मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं देख रहा हूँ कि तुम भी डाइटिंग के चक्कर में पड़ गई हो। आखिर ऐसे भूखा रहने की जरूरत है क्या तुम्हें? खा तो रही हूँ बाबा। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। अब मैं वो हार खरीद सकती हूँ जो आयतन के लिए पसंद किया था। माहिर ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी है। बाबा, ये देखें जरा आप। क्या बात है नूर? मुझे लगता है बुलंद कोई गलत काम कर रहा है। वो बहुत परेशान था कि इस महीने दुकान का किराया कहाँ से देगा, और अब उसके कमरे से ये पैसे मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। यार मुझे क्यों गलत समझ रही हो? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो बताओ ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं है? माहिर ने दिए थे मुझे। खुश? अब तो बता दिया ना। तुमने ये बात क्यों छुपाई? माहिर ने मना किया था मुझे किसी को भी बताने से बाबा। सुबह का अखबार माशाअल्लाह रात को खत्म हो गया। गर्मा गर्म खबरें लीजिए और पढ़िए। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। वालेकुम अस्सलाम। ताजा ताजा गर्मा गर्म खबरें। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। और बताओ, सब ठीक चल रहा है ना? जी भाई, आपसे कुछ बात भी करनी थी। मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, फिर कुछ काम है मुझे। वापसी में मिलता हूँ तुमसे। ठीक है माहिर भाई, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। माहिर, पहले मुझे तुम पर गुस्सा था, मगर अब नहीं है। तुम्हें इस तरह जिम्मेदार देखकर अब मैं बहुत मुतमईन हूं। खुश रहो। क्या एक नूर को भी पता चल गया? बेचारे बुलंद को परेशान कर दिया होगा उसने। उफ, क्या कातिलाना मुस्कुराहट थी। हजारों लड़कियां उस मुस्कुराहट पे फिदा हो जाएं। देर हो जाएगी, मुझे बहुत से काम करने हैं। लड़की तीर ठीक निशाने पर लगा है तुम्हारा। तुम कितनी खुशकिस्मत हो। यार ऐसे तो ना कहो। माहिर अच्छा है पर मैं भी तो अच्छी हूँ दिमित। वो भी खुशकिस्मत है। जानती हूँ माहिर मुझसे कहता है कि तुम सा दूसरा कोई नहीं है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जब वो मेरा हाथ पकड़ता है तो मुझे उसका लम्स अच्छा लगता है बहुत। माना भाई ने जबरदस्ती दिए, मगर तुमने पैसे लिए ही क्यों? तुम्हें पैसे नहीं लेने चाहिए थे उससे। मैंने उसे मना किया था लेकिन वो नहीं माना। पागल है, मंगनी से पहले कार बेच दिया था। गुड मॉर्निंग यासीन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुलंद। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग मनोली आपा। मैं जरा पेमेंट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जरा जल्दी आना, मुझे घर पे कुछ काम है। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, कीमतें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, ये कैसी आवाज थी? बुलंद, चलो यहाँ से।
अच्छा माहिर, मेरे जाते ही आयतन के सैंडल तैयार करने ना बैठ जाना। क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ के लिए ऐसे ही करता था। माहिर भाई जल्दी है, नई मार्केट पर हमला हुआ है। क्या? कैसे? आज ही तुम यहीं ठहरो। रास्ता दो, भाग जाओ, दूर हो जाओ। यार फैसल पीछे रह गया, जल्दी आ फैसल, जल्दी। कौन लोग हो तुम? हाँ, भाग जल्दी आ। बस ही सब ठीक तो है ना सुलेमान? जी माहिर भाई। यासीन, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इग्नोर? बहन तुम ठीक हो ना? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, उन्होंने सब कुछ तबाह क्यों कर दिया? मेरी अंगूठी भी ले गए और तुमने जो किराए के पैसे दिए थे वो भी ले गए। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। उदास मत हो। बाबा आपको मालूम है ये सब कुछ किसने किया है? बेटा तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? जी बाबा हो रहा है। फिक्र मत करो बेटा, जल्द ठीक हो जाएगा। बाबा मैं इग्नोर को साथ लेके जा रहा हूँ, चलो घर चलते हैं हम। और उन कमीनों का तो मैं वो हशर करूंगा कि वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकेंगे कभी भी। माहिर, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बहुत गुस्सा है। कुछ भी करने से पहले दालियान से बात करते हैं। पहुंच गए। हाँ यहाँ लेटा दो बेटा। तुम फिक्र मत करो, कुशन निकाल के इसके सर के नीचे रख दे अम्मी। आराम से आराम से, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी बेटा आपको ये क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो मुझसे अलमारी खुली रह गई, उसका दरवाजा इसे लग गया। ये मेरी गलती है बेटा। परेशानी की बात नहीं है नाजिफ, शाम तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं जरा जा रहा हूँ, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज। दालियान साहब बहुत शानदार पार्टी है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, आप लोग लुत्फ उठाएं। पकड़ के दिखाओ, पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम दालियान साहब। बैठिए बैठिए। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक तो है ना? शुक्र है अल्लाह का। वो तकरीबन 10 लोग थे, ठीक कह रहा हूँ ना बुलंद? बिल्कुल ऐसा ही है। उन लोगों को देखेंगे तो शिनाख्त कर लेंगे। जी बिल्कुल नहीं। उनमें से एक को देखा था मैंने। तो फिर ठीक है, इस वाकये की रिपोर्ट कराने के लिए आपको हमारे साथ थाने तक चलना होगा। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी होंगी। जी ठीक है, चलिए। क्या इन पे छोड़ना ठीक रहेगा? अच्छा हम चलते हैं, खुदा हाफिज। माहिर ये लो तुम। एंगेजमेंट के बाद ले लूंगा तुमसे, अभी जरूरत नहीं है मुझे। थैंक यू मेरे दोस्त। हमेशा घटिया मशरूब पिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। दूसरी बोतलें खोलो। सुना नहीं तुमने? जाओ फौरन। खुशामदीद मेरे भाई नाजिफ। खैरियत है? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? हम मजबूर होके आए हैं। बैठो तो सही। मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा।
ठीक कुछ भी नहीं दालियान। नई मार्केट में तोड़फोड़ हुई, वहां के दुकानदारों को धमकाया गया, उन पर तशद्दुद भी हुआ। कौन कर सकता है? तुमसे बेहतर कौन जानता होगा ये बात दालियान। जाओ यहां से। किस लिए खड़े हो यहां? हराम कहीं के कोई एक भी काम कर रही तुम में से। दफा हो जाओ। ये बताएं, क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? बिल्कुल नहीं बेटा। आपकी इजाजत के बगैर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सही कहा ना मैंने? आप झूठ ना ही बोलें तो बेहतर है। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए? माहिर, अपनी बात वापस लो। उस वाकई से सब दुखी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें बहुत गुस्सा है, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या तुम जानते हो ये सब किसका किया धरा है? बिल्कुल नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो आपके कदमों में ला डालते। किसी भी हालत में उनसे बदला लेना होगा, वो भी सुबह से पहले। वो जो कोई भी है हमें मालूम होना चाहिए। परेशान मत हो, हम पता चला लेंगे। हमें इंतजार रहेगा। नाजिफ, ऐसे हालात में मिलना खुशगवार नहीं है, मगर अब तुम भी ये देखना कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ये जो कुछ भी हुआ है पहली और आखिरी बार हुआ है। मैं हूं ना बदला लेने के लिए तुम्हारा। ये जिसने भी किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मुलाकात होगी आपसे। Aradır kaşlarım ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramızdırır. Yaramı sarmaya yar kendi Üf, ne oluyorsun be, ödüm kopardın. Mahir enişteyle Nazif amca gelmişler. Songül haber verdi. बाबा खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। बेहतर महसूस कर रही हो? तकलीफ है तो बताओ। नहीं बाबा, ठीक हूँ। या अल्लाह, ये मैंने क्या गलती की? मैंने अलमारी का दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? मेरी बच्ची इस तरह जख्मी ना होती। अच्छा चलो, मैंने तुम लोगों के लिए सूप बनाया है, गर्म गर्म है, जल्दी से पी लो। ठीक है? मैंने कहा था ना खाने पर इंतजार नहीं करना। अच्छा हुआ हमने इंतजार किया, अब साथ खाना खाएंगे। यहाँ आओ मेरे शेर तुम। ओह, बहुत भारी हो गए तुम तो। आपकी वजह से हमने खाना नहीं खाया। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं। कहने दो इसे, सही कह रहा है। सारी गड़बड़ तुम्हारी नानी ने की है। चलो शुरू करते हैं। माहिर, जल्दी बाहर आओ, खाना तैयार है। अच्छा अम्मी, आ रहा हूं मैं। कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, जल्दी आओ। बस आ गया अम्मी। मैं देखती हूँ। आओ बेटा, बैठ जाओ। आओ आओ, वो आ चुके हैं। माहिर कैसा है? हाँ वैसे उनका मूड तो अच्छा लग रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे फिक्र नहीं करो, तुम्हें देखकर और अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं मैं। क्या लाई हो ये? हाय मेरी जान, तुम कितनी अच्छी हो। ये मेरा फेवरेट सिंगर है। ये दो लोगों के लिए, उन्हें बताओ मेरे साथ जा रही हो, उसके बाद जिससे चाहो मिल सकती हो तुम।
नो प्रॉब्लम। कैसे हैं आप लोग? आ जाओ बेटा, खाना खा लो। खुश आमदीद। नहीं, मैं खाना खाकर आई हूँ। मुझे माहिर से कुछ जरूरी बात करनी है, अगर बुरा ना लगे। मैं आता हूँ। हाँ, वो बेटा जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, मुझे बात कर। जी। उसने भाई को खाना भी नहीं खाने दिया। कोई जरूरी बात होगी, वो बिला वजह उसे क्यों लेके जाएगी? मैंने खाने के दौरान डिस्टर्ब कर दिया ना? कोई बात नहीं। वो नई मार्केट में क्या हुआ था? मुझे पता लगा वहाँ बहुत तोड़फोड़ हुई। मैं वहाँ इसलिए नहीं आई कि कहीं बुरा ना लगे तुम्हें। कौन थे वो? अभी तक तो पता नहीं चला कौन थे। खैर, मार्केट ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी माहिर। मुझे कुछ पूछना है, गुस्सा मत होना। क्या बात है, बोलो ना। मेरी एक दोस्त है स्कूल के जमाने से, इंची। वो हमारी मंगनी के लिए एक लॉन पसंद कर आई है और उसे उसने बुक करने की बात भी कर ली है उसके मालिक से। असल में वो बहुत ही अच्छी लड़की है, ऐसा हर किस नहीं करती। ये सब उसने हमारी खुशी के लिए किया। उससे वो लॉन बहुत कम पैसों में मिल रहा है। बेचारी ने ये सब हमारा सोच के किया। मैंने तो उसे मना भी किया था, लेकिन तुम क्या कहते हो माहिर? अच्छी तरह तो जानती हो तुम सब, हमारा बचपन यहीं गुजरा है, इन्हीं गलियों में खेलते हुए। तो यहीं होगी एंगेजमेंट। अच्छा, अब तुम्हें अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो बस पूछने के लिए आई थी। जैसे तुम्हारी खुशी। कल रिंग लेने जा रहे हैं हम। अपने पत्ते तो जरा गौर से देखो, तुम हार चुके हो। क्यों, कैसी रही? उम्मीद है ये जहन्नुमी सईद इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कुछ अर्सा पहले तक तो ये यहां नहीं था और अब अचानक ही आ गया। खुदा ही जानता है कि इन लोगों में और नई मार्केट के वाकई में क्या ताल्लुक है। जो मालितन को खड़ा किया है उनके पास मैंने, ताकि वो उनकी बातें सुन सके। अच्छी बात है। इन मेजों तक मेरा नाम पहुंचाओ ताकि जान जाए वो। मैं उनसे नाराज हूं, उन्हें बताओ। मैं उन्हें सुनहरी पुल से नीचे फेंक दूंगा। जाके सबको बता दो कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा उन मुजरिमों को जो इस वाकये में मुलव्विस हैं। हो जाएगा जनाब। तुम तो कह रहे थे बहुत भूख लगी है, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। खाओ ना मेरी शेर। अपना खाना खत्म करो जल्दी से। मैं अब चलती हूँ। आपने कुछ कहना था आंटी? एक मिनट बेटा, पहले मैं आयतन से मिल लूं, वरना मैं ये काम भूल जाऊंगी। सास बहू का प्यार तो देखो। क्या बूढ़े लोग भूल जाते हैं? खाते हुए नहीं बोलते। बहुत शरारती हो गया है। मैं निकाल देती हूँ। चलो भाई, खाना अब और मजेदार हो जाएगा। मेरी बहन जो निकाल के दे रही है। बुलंद भाई, फायर ब्रिक फैक्ट्री इस्तांबुल में कहाँ पे है? वो स्लॉटर हाउस के करीब में ही है। अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। देना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, लेकिन इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जी। आओ, ये हार अपने हाथों से पहनाती हूँ। आईने में देखो जरा, बहुत प्यारी लग रही हो। आपा, क्या आप हैं? क्या अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता?
क्या हुआ आपा? क्या माहिर मान गया आपसे? नहीं, ये लो। थैंक यू इग्नोर। अब देखते हैं तुम्हारी दुल्हन आने के बाद इस घर को कैसे चलाएगी। तुमसे बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं चला पाएगी। सच कह रहे हो? तुम शादी नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम इस बात को कई बरसों तक टालते रहे हो। अभी तुम शादी से इनकार कर सकते हो क्योंकि अगर एक बार मंगनी हो गई तो वो खत्म करना मुश्किल हो जाएगी। ये चाय कड़वी क्यों लग रही है मुझे? हो सकता है मेरे अल्फाज कड़वे हों, मेरा कहना तुम्हें बुरा लगा, मगर ये देखकर खामोश नहीं रह सकती मैं। तुमने देखा ना, मैंने बुलंद से शादी कर ली मगर उससे मुझे प्यार नहीं हुआ। आपको जब किसी से प्यार ही ना हो तो फिर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है गुजारनी। और फिर आदी हो जाते हैं आप ऐसी जिंदगी के। फिर उस वक्त आप ये सोचे बगैर नहीं रह सकते कि आखिर ये प्यार है क्या। प्यार करना अच्छी बात है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता इस बारे में, ऐसा सुना है मैंने। आयतन अच्छी लड़की है, इसीलिए तो बाबा ने उसे पसंद किया है। उनके घर की जिम्मेदारी बाबा ने अपने ऊपर ली थी, अब मेरी जिम्मेदारी है। अपने साथ ऐसा मत करो ना। बाबा ने बरसों तक हम सबका बोझ उठाया है, वो बोझ तुम उठाओगे अब क्या? चलो अब बस बहुत हो गया। तुम पानी क्यों नहीं लाई? मुझे प्यास लग रही। लाती हूं मैं। फैसल, चाय। कहो। तुमने तो डरा ही दिया। प्लेटें लेकर आओ जाकर, खाने को कुछ लाया हूं मैं। खैरियत है, मूड बहुत अच्छा है। तालियान को असले का कारोबार नामंजूर है, इसलिए उसके बॉस ने वार्निंग दी है। तालियान, अगर तुम हमारी मदद करोगे इस कारोबार में तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। जाके सैतन को बता दो मैंने फैसला कर लिया है। मैं वो हथियार हरगिज नहीं बेचूंगा जिनसे लोग एक दूसरे को मारें। वो उसकी कब्र खोदने का सोच रहे हैं। उसकी तदफीन के बाद नया बॉस उसकी जगह ले लेगा। हम लोगों ने तकलीफें साथ सही हैं, तो खुशी में भी साथ रहेंगे। हमें भी तो इस बात का इंतजार है, बस तुमने उसे एक बार मुतमईन कर दिया तो समझो उसका राइट हैंड बन गए। ये इतना आसान नहीं है। तालियान तजर्बेकार है, मैं उसकी तवज्जो हासिल कर लूंगा, क्योंकि मैं अपने दो साथियों की कुर्बानी दूंगा जो कहते हैं कि हमने मुजरिम पकड़ लिए हैं। ये उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे लिए लूट का माल। जब तुम उन्हें पकड़ो तो उनके पास से बरामद होना चाहिए। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। सियासतदान इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। कल नई बनने वाली मार्केट पर हमला हुआ, उसके नतीजे में काफी माली नुकसान भी हुआ है। सुबह का अखबार, सुबह का अखबार। ताजा ताजा गर्मा गर्म।
हसन पकड़ो उसे। मुस्तफा, जमाल, आओ इधर, सबक सिखा दो इसे। किधर तक भाग सकेगा? किसी काम के नहीं तुम लोग। शर्म मानी चाहिए तुम सब लोगों को। अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए। चल बच्चे आगे चल, चल। इसे तो जानते हो ना तुम? हम इसे नहीं जानते, लेकिन ये अच्छा किया तुमने। अच्छा किया या बुरा किया, मैं अपनी तारीफें सुनने नहीं आया। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि ये किसका आदमी है। माहिर, घबराओ मत। हम जल्द पता चला लेंगे ये किसके लिए काम करता है। जैसे आप इन्हें सुबह होने से पहले ढूंढ रहे थे। जल्दी से बताओ मुझे, तुम किसके लिए काम करते हो? इसे तो मैं संभाल लूंगा। ठहरो, अपना काम करो। इसे तुमने नहीं ढूंढा। ले जाओ इसे और कमरे में बंद कर दो। इससे मैं खुद पूछगछ करूंगा। चल। शाबाश,
जल्दी से बताना शुरू करो कि तुम्हें किसने भेजा था। देर तुम्हारे हक में अच्छी नहीं होगी। मुझे मुंह बंद रखने वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बचा ले, बचा ले। आपकी बेटी फातिमा आई है। मैंने कितनी बार कहा है कि उसे यहां मत आने दिया करो। मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? आइंदा अगर चोरी से मेरे ऑफिस में तुम घुसे तो मैं तुम्हारी आंखें तोड़ दूंगा। बेहुदा, चलो अपनी अपनी जगह, चलो। फैसल, फैसल क्या हुआ? ये लो निकित, तुम्हारे भाई के घर का पता चुराया मैंने प्रिंसिपल ऑफिस से। देखा, मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढ ही लिया। आज से उस्मान की तरह तुम भी मेरे बिल्कुल सगे भाई हो। इसने अपनी रस्सी तोड़ ली और मेरी गन छीन कर खुद को गोली मार ली। शुक्र है इसने तुम्हें गोली नहीं मारी। समझ गया हो कि यहां से निकलना नामुमकिन है। माहिर, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? मैं तो खुद अभी अभी पहुंचा हूँ। ड्रेस के लिए गई थी एंगेजमेंट के। बहुत प्यारा है, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं, सबको बहुत पसंद आया। मगर मेरे लिए तो तुम्हारी पसंद अहम है। कुछ भी पहन लो, सब जचता है तुम पे। ये क्या बात हुई माहिर, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तुम्हारे लिए ड्रेस देखना जरूरी है। कह दिया ना, फर्क नहीं पड़ता मुझे। आओ। मैं जा रहा हूं।
लो अपने शूज। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दालियान साहब ने मुबारकबाद भेजी है। वो खुद तशरीफ लाते मगर वो अचानक ही बीमार पड़ गए। माहिर हम उस आदमी से कुछ उगलवा नहीं सके क्योंकि उससे पहले ही उसने अपने आप को गोली मार ली। दालियान साहब का कहना है कि आपका नुकसान हमारा नुकसान है, हम उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम लोगों पर। कुछ और पता चला तो बता देंगे। दालियान अंकल से कहना हमें आज के बाद कोई मदद नहीं चाहिए उनकी। चलें ठीक है। तुम्हारी जरूरत पर मुझे खुश होना चाहिए या परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और एक नए रिश्ते में बनने वाले हो, नई जिंदगी शुरू करने वाले हो। एहतियात करो। क्या एहतियात करूं बाबा? हमारे अपने लोगों पर जुल्म होता रहा और मैं देखता रहूं चुपचाप। आप मत घबराएं बाबा, आपने भी तो सारी जिंदगी कभी किसी की मदद कबूल नहीं की बल्कि दूसरों की मदद की और मुझे भी अपने ही जैसा बनाया।